اگر ہم مریخ پر شہر بنا لیں تو کیا ہوگا؟ ہم میں سے بیشتر لوگ ٹی وی سیریز اسٹار ٹریک کے بارے میں جانتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ایک دن سیاروں کے درمیان سفر کرنا معمول کی بات بن جائے گی اور ایسا ممکن ہے کہ 2025 تک ہم 4 لوگوں کو چاند پر لے جا سکیں گے، مگر یہ کام تو نیل آرمسٹرانگ اور ان کے ساتھی 60 سال پہلے 1969 میں کر چکے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم 4 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اور مزید آگے جا پائیں، لیکن اگر ہم حقیقی انسانوں کے ذریعے سیارچوں اور نظام شمسی کے سیاروں کی سیاحت کرنا چاہیں اور انہیں قابل رہائش اور زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر ہم مریخ پر شہر آباد کریں تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بات بہت آسان ہوگی؟ کیا ہمیں زیر زمین رہنا پڑے گا؟ ہم وہاں کتنے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور مریخ پر معیشت کیسی نظر آئے گی؟ السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ پاکیزہ زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ خلائی تحقیق کا مرحلہ نسلوں دور نہیں ہے، بلکہ یہ ابھی ہو رہا ہے، لیکن ہماری منزل کہاں ہے یہ شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم ایک پراسرار ویران مریخ 625 ملین کلومیٹر دور اس چھوٹے سے سرخ نقطے پر زندگی شروع کرنے کا تصور کریں تو یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا ہم سوچ رہے ہیں۔ 1975 کے بعد مریخ پر وہ چیزیں جو دعوے کر رہی ہیں وہ ہے روبوٹ اور سیٹلائٹ، لیکن اب ایلون مسک اور ان کی اس کہانی کو اسپیس ایکس کمپنی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مگر دیکھا جائے تو ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد دراصل حکومت، تجارت اور ثقافت کے ساتھ مریخ پر ایک شہر بنانا ہے۔ 1000 اس منصوبے کے لیے خلائی جہاز اور اس سے بہت زیادہ نئے بہادر بھرتی کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نچلی کشش ثقل میں محدود رصد کے ساتھ زندہ رہنے والے بہت کم لوگوں کا مریخ پر رہنا زیادہ کچھ نہیں تو ہمیں زمین پر کم وسائل کے ساتھ زندہ رہنا سکھا سکتا ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی منصوبہ بندی اور سپلائی کی ابتدائی مراحل پر انحصار کرتے ہوئے کیا مریخ پر ہماری زندگی پائیدار ہو سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کے لیے سب کوشاں ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر عظیم شہر کا آغاز چھوٹے گاؤں سے ہی شروع ہوتا ہے، چاہے آپ اس کے لیے ہانگ کانگ کے ماہر گیر شہر کو دیکھ لیں یا روم نامی جھونپڑی والے گاؤں کی بات کر لیں۔ یہ سب چھوٹے پیمانے سے یہ یہاں تک آئے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مریخ پر ایک ترقی پذیر شہر بن جائے تو اس کے لیے آپ کو مٹھی بھر لوگوں سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ بورڈ انسٹیٹیوٹ آف نیشنل پولی ٹیکنیک کے مطابق اس مہم جوئی کو شروع کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 110 آباد کاروں کی ضرورت ہوگی۔ یہ منصوبہ اسپیس ایکس 2 اسپیس شپس کے ساتھ شروع ہوتا ہے جس میں 100 افراد ہوتے ہیں اور یہ شہر کے مٹھی بھر متلاشیوں کے ساتھ وسائل کو خطرے میں ڈالے بغیر مزید رہائش گاہیں اور تحقیقی اسٹیشن بنانے کے لیے کافی لوگ ہوں گے۔ اور اگر اس مرحلے میں آپ کا کھانا ختم ہو گیا تو شاید یہ تجربہ آپ کے لیے اختتام کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن مریخ کے اس شہر کو جس سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا ہوگا وہ زمین سے باقاعدہ ترسیل کیے بغیر اس کو پائیدار بنانا ہے، اور ممکن ہے اس کی تبدیلی ہر چند سال بعد ہو۔ اب آپ دیکھیں، مریخ کے انڈے کی شکل کے مدار کے ساتھ 1 سال بنانے میں زمین کے 687 دن لگتے ہیں، لیکن سپلائی صرف اس وقت شروع ہوگی جب زمین اور مریخ سیدھ میں ہوں، جو ہر 2 سال بعد ہماری دنیا کے درمیان سفر کے وقت کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور تقریباً 8 ماہ کے طویل عرصے میں راکٹ کے اترنے پر ان تمام سامان کے ضائع ہونے کا امکان باقی ہے۔ چونکہ مریخ پر کشش ثقل زمین پر کھنچنے کا صرف 3/8واں حصہ ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مریخ کی سطح پر محفوظ طریقے سے اترنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہوا میں اڑنے والی دھول کی خطرناک مقدار کو مد نظر نہیں رکھتا۔ بہرحال چاند پر دھول کافی خراب تھی اور یہ دھول عملے کے ارکان کی آنکھوں میں آ گئی، جس کی وجہ سے ان کے خلائی جہاز کے نظام کو نقصان پہنچا۔
लेकिन मरीख पर धूल उठाना उससे भी ज़्यादा मोहलिक हो सकता है, क्योंकि हर दाना बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड और बरकी चार्ज होता है। अरे, अगर आप महफूज तरीके से मरीख पर पहुंच गए हैं, तो अब आप क्या खाने जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ आपको ज़मीन की तरह देसी और फास्ट फूड मिलना मुश्किल है। मरीख पर क्लोरीन वाली जहरीली मिट्टी होती है और अगर आप इन्हें अपने खाने के साथ खाते हैं तो आप अपने थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको अपने खाने की फिक्र हो, मैं आपको मरीख पर सख्त हालात से तहफ़्फ़ुज़ कायम करने के लिए कुछ 95% आगाही देती जाऊं। मरीख पर कार्बन डाइऑक्साइड से बनी फ़ज़ा के साथ जहरीली हवा भी मौजूद है और आप उसके अलावा सतह पर होने वाली शदीद तापकारी को मत भूलिएगा, क्योंकि आपका तापकारी की ज़्यादा नुमाइश और सांस लेने वाली हवा के बगैर माहौल में ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। शुक्र है आपके पाँव के नीचे इन पत्थरों का जो आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। जी हाँ, इसी तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है कि जिसके मरीख पर आपको बहुत ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किन पत्थरों की बात हो रही है। ये पत्थर मरीख पर सिर्फ 5 मीटर 16 फीट सतह मवाद, जिसे रेगुलेट कहा जाता है, इतनी ही मकदार में होने वाली तापकारी से बचाता है जितना कि ये ज़मीन के माहौल को बचाता है। रोबोट और 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल करते हुए परतों वाली दीवारें बनाने के लिए इस मवाद को सीमेंट में प्रोसेस किया जाएगा। ये मवाद एक हिफाजती शेल के तौर पर काम करेगा। और इस खोल के नीचे क्या होगा, ये सुनकर आप हैरान होने वाले हैं, क्योंकि ट्यूबों के जरिए जुड़ने वाले इस गुंबद में साइंस की सहूलियात, रिहाइश की जगहें और आपके घर की तमाम सहूलियात आपको बाहर के तेज धूल के तूफानों से पनाह फराहम करेगी और ये सहूलियात महीनों तक जारी रह सकती है। अब देखते हैं कि मरीख पर घर कैसे होंगे और इनकी लागत क्या होगी। $4000 से कम लागत के साथ ज़मीन पर कुछ कंपनीज ने 75 प्रिंट शुदा घर तामीर किए हैं और ये सब एक दिन में बनाए गए हैं। यहाँ तक कि एलन मस्क का दावा है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ कॉलोनी कायम करने में 10 साल लग सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त के लिए है जब मरीख का गांव पर पहला शहर बन जाएगा। क्योंकि इस दुनिया को ड्रिल या फ्रीक नहीं किया जा रहा है, इसलिए मरीख पर पावर ग्रिड को शुरू से ही पायदार बनाया जा सकता है। हम यहाँ बिजली के लिए सोलर लगाएंगे और इंजन्स के लिए मीथेन जैसी कुदरती गैसें इस्तेमाल करेंगे। और अब आप बेहतर तरीके से इन तमाम लोगों को खाना खिलाने का तरीका तलाश करें। मरीख पर कम कशिश शकल आपके पट्टों की कमियत को कम कर सकती है। अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए आपको मज़ीद प्रोटीन फराहम करने की ज़रूरत होगी। आपको हर रोज़ 110 पकी हुई चिकन ब्रेस्ट और 660 गाजरों के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। अगर इन गुंबदों में से एक इंडोर फार्म पर मुश्तमिल है तो आप इन मुर्गियों को पाल सकते हैं, जिनकी आपको अपने शहर को खाना खिलाने की ज़रूरत है और आपके पास सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर खाद दस्तयाब होगी। और अगर आप इस खाद को ग्रीन हाउसेस में इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास साल भर अपनी फसलों को खाद डालने का एक तरीका होगा। लेकिन आप इन फसलों को कैसे सैराब कर सकते हैं और इसके लिए पानी कहाँ से आएगा? साइंसदान अब भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आया मरीख पर बर्फ के ढक्कनों के नीचे माया पानी मौजूद है या नहीं। लेकिन अगर ये मौजूद है तो मीठे पानी के इस मंबा को कॉलोनीज के लिए आबपाशी के लिए इस्तेमाल करने के लिए फिल्टर किया जा सकता है। कम कशिश शकल के साथ पानी को ज़मीन में नीचे खींचने के साथ आपको अपने पौधों को जिंदा रखने के लिए कम पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये सतह के बहुत करीब होंगे। हर 2 साल बाद सामान की तरसील के साथ मरीख पर मौसम बहार का पानी दस्तयाब होने से शहर के काम करने का तरीका बदल जाएगा। ये पानी की फराहमी की तकसीम और निगरानी के लिए एक सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और फिल्ट्रेशन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए साइंसदानों को मुलाजमत देगा। अब शहर में एक बुनियादी ढांचा है और इन मुलाजमतों पर भी भर्ती करने के लिए साइंसदानों के अलावा लोगों की ज़रूरत है। अब यहाँ 2 सवालात पैदा होते हैं
तो वो ये कि आप नकद के लिहाज से अपने वक्त की कदर कैसे करेंगे, आप मसनूआत या खिदमात की अदायगी कैसे कर सकते हैं। बैरूनी खला में सफ़र करने के लिए नकद का वज़न बहुत ज़्यादा है और क्रेडिट कार्ड्स को इस्तेमाल करने के लिए वाईफाई की भी ज़रूरत होगी। मरीख और ज़मीन के दरमियान राब्ते में 14 मिनट के वक्फे के साथ आपको मकामी तौर पर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको एक क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है जिसे मार्स कॉइन भी कहा जाता है। लेकिन आपको इस खलाई जहाज़ पर सवार होने से पहले इस जहाज़ को अपने अर्थ पैसे से ख़रीदना होगा, जबकि सिर्फ मार्स कॉइन मार्शियंस के लिए दस्तयाब होगा। और इस रकम का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये रकम हुकूमत बनाने, तिजारत बढ़ाने और मायार ज़िंदगी को बेहतर करने में मदद करेगी। मरीख का मुआशरा अब भी नया है, लेकिन हो सकता है कि आप इस नकदी निज़ाम पर भरोसा करने के बजाय अपनी खिदमात की तिजारत करें या सामान की बार्टरिंग सीख लें। और अगर हम सही तरीके से इस काम को सरअंजाम देते हैं तो मरीख पर ज़िंदगी मुस्तकबिल की तहजीबों के लिए नमूना हो सकती है, क्योंकि ज़मीन पर तामीर की गई सकाफत की रुकावटों से पाक है, या फिर ये किसी साइंस फाई फिल्म की तरह हो सकता है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि आपके ज़ौक़ इनके मुताबिक हों। इसीलिए अगर आप मरीख पर जाने के लिए तैयार हैं तो ये भी हो सकता है कि आप उसकी हुदूद को आगे बढ़ाना चाहते हों। ये वो सवालात हैं जो तमाम साइंसी उलूम की बुनियाद हैं और इसीलिए हमने अपने इस प्रोग्राम का नाम ये रखा। अब देखिए ना, हम हर प्रोग्राम में ये सवालात पूछते हैं और ऐसी साइंसी मालूमात फराहम करते हैं जो दिलचस्प भी हैं और कारआमद भी। लिहाजा आप हमारा ये प्रोग्राम भी देखते रहिए और सवालात भी पूछते रहिए कि यूँ होता तो क्या होता।